ডটে বাবা বিচেস না বলে বিচেস না না ফটো না আমি জুম जाना सपना কি করছ না लाइव से तुम Should we start? Yes. देखिए तो अगरतला से सर 2 मिनट और है 2 मिनट लाइव है टाइम नहीं हुआ है महाराज का मैं मैगी बना दूं আমি আসি তো हाँ बोलिए लाइक लाइक देंगे ना अभी शुरू होगा लाइव अरे तब मैंने बनूंगा कोई अरे लाइव चल रहा है फ्रॉम राइमा वैली ये त्रिपुरा जिन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन दिया जो स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर वो ऑफिशियली त्रिपुरा मोर्चा पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं विथ मी ऑल्सो इज द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा मोर्चा विजय कुमार रांखौल यहाँ में हमारे EM हैं फ्रॉम राइमा वैली राजेश त्रिपुरा MDC श्री रविंद्र देवर्मा सुनील देवर्मा अंशु कुमार त्रिपुरा एंड हमारे विमेन प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ में गणेश देवर्मा और हमारे विमेन TWF के न्यूली अपॉइंटेड वुमेन प्रेसिडेंट इसके बाद उनके नाम के मोस्ट वेलकम टू जीवी दास ভাই ধন্যবাদ সবাইকে আপনারা জানেন আমি 2018 পলিউশন কমপ্লেক্স থেকে দীর্ঘ 8 বছর ধরে আজকে গতকালকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে আমাদের ভূভাগরা সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আজকে যেহেতু ভূভাগরা সবাইকে ডাক দিয়েছে এসে ত্রিপুরাসা আমি একজন ত্রিপুরাসা হয়ে মহারাজ আমাদের জন্য যে মাঠে নেমেছে আমাদের জন্য লড়াই করছে আমি ব্যক্তিগত এই পরিস্থিতিতে মহারাজার সহযোগিতা করা এবং মহারাজার কাছে এবং মহারাজার সংগঠনে ত্রিপুরা মতের কাছে সামিল হয়ে কাজ করা এবং মহারাজাকে সহযোগিতা করা এটা বেশি এবং আপনারা জানেন সবাই
আইপিএফটি যে ডিমান্ড এবং আমাদের মহারাজার যে ডিমান্ড ইকুয়াল ত্রিপুরালেন গ্রেটার ত্রিপুরালেন আমাদের মহারাজা যে সকলকে আহ্বান করেন যে আমরা সবাই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ত্রিপুরাসার উন্নয়নের জন্য লড়াই সংগ্রাম করে ময়দান নিচ্ছে আমরা সবাই। আমি এই মুহূর্তে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল থাকতে পারে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলতেই পারে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মহারাজাকে সহযোগিতা করা এবং মহারাজা একা নয়, আমরা সবাই ত্রিপুরাসা আছে, 12 লক্ষ ত্রিপুরাসা। আমি 12 লক্ষের মধ্যে আমিও এই জননীতি আমিও এখানে আছি। এই সময়ে মহারাজাকে সাহায্য করা এবং মহারাজার হাতে হাত মিলে আমরা কাজ করার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়েছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আজকে আমার সাথে আমাদের রাইমা ভ্যালি নেতৃত্বে রয়েছেন আর কমসে কম 100 জনের লিডার রয়েছেন আজকে, এবং আগামী দিনে আসবে এবং আগামী দিনে বিভিন্ন দল থেকে আসবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসবে, শুধু আইপিএফটি নয়। আমি শুধু রাইমা ভ্যালি থেকে নয়, আগামী অন্যান্য লংতরা ভ্যালি থেকেও, পর্বত থেকেও, অম্পি থেকেও অনেকটা কয়েকটা জায়গা থেকে বিভিন্ন দল থেকে আমরা আইপিএফটি মহারাজা বলে সামিল হব এবং বিভিন্ন লিডাররা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং বিভিন্ন এমএলএরাও রয়েছেন। তারাও আমাদের মহারাজার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মহারাজের যে আইডিওলজি, মহারাজের যে মিশন, আমরা সবাই সহযোগিতা থাকবো এবং সহযোগিতা করবো, হাতে হাত মিলে আমরা মহারাজার সংগঠন আমরা সামিল হব। সব লিডাররা এখন যোগাযোগ রয়েছেন, আপনারা দেখবেন। বর্তমান এটা জাস্ট একটা প্রতিদিন আপনারা দেখছেন বিভিন্ন দল থেকে আসছে। এখন আমাদের মহারাজা ছাড়া এই আমাদের রাজ্যের 12 লক্ষ ত্রিপুরাসা কেউ মুক্তি দেওয়ার মতো আর কোনো মনে হয় না। বিভিন্ন লিডাররা আছে, বিভিন্ন আইডিওলজি নিয়ে কাজ করে, কিন্তু প্রকৃত লিডার দরকার। আইপিএফটি হয়তো বা 2009 থেকে দীর্ঘ বছর ধরে একটা আঞ্চলিক দল ত্রিপুরাসাতে নিয়ে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আইপিএফটি গার্জেন ছাড়া গড় হয়ে গেছে এবং আইপিএফটি সেই গার্জেন ছাড়া গড় এবং কতদিন সেই গড়টা টিকবে এটা সন্দেহ আছে। বর্তমান মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামছে, আমরা সবাই এই যে ত্রিপুরাসা হিসেবে আমরা এই মহারাজার যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন যে ডাক, আমরা সবাই সহযোগিতা এবং প্রস্তুতি নিয়ে এবং মহারাজার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি আজকে এই সিদ্ধান্ত এমএলএ অস্থায়ী পোস্ট এই যে ত্রিপুরাসা, আমি দফাই সব থেকে বড়, সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এমএলএ 5 বছর জন্য এবং দফা হচ্ছে 7 বছর জন্য। সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আর কিছু লিডার আসবে, আপনারা দেখবেন। ধন্যবাদ। Any questions that you have? अगर कोई सवाल है? सर मेरा एक सवाल था 2018 का जो इलेक्शन है तब से आप लोग त्रिपुरालैंड को लेकर आईपीएफटी बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया 4.5 साल में जो त्रिपुरालैंड का जो प्लान था आपका वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया? एक्चुअली आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा आईपीएफटी गलत किया विदाउट डिटेल। ये आप लोग जानते हैं ये आईपीएफटी का सबसे ज़्यादा यूथ लोग ने काम किया है 2016, 17, 18 जो त्रिपुरा में सरकार आया था उसका हाथ यूथ आईपीएफटी का होता है। उसके बाद 4 साल में आप लोग देखा है त्रिपुरा स्टेट में क्या हुआ। आज में कंपेन जो घर में विदाउट गार्जियन तो उस घर में कितने दिन रहेंगे वो सोचने का बात है। इसलिए मैं अभी महाराजा जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो सबके लिए जो इसलिए त्रिपुरासा के लिए जो अभी फाइट कर रहे हैं, हम लोग एज ए त्रिपुरासा अभी महाराजा के साथ हैं, इसलिए मैं अभी महाराजा के साथ में आया हूँ। तो
आप लोग जब आईपीएफटी में थे, जब 4.5 साल तक त्रिपुरा लैंड के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो बीजेपी वालों ने आपका साथ नहीं दिया था इसके रिगार्डिंग? आप लोग ने देखा है आफ्टर इलेक्शन असेंबली में मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ और एक्स एम एल ए बीजेपी में बहुत बार कोशिश किया है। मेरे एक क्वेश्चन भी है, मैंने त्रिपुरा के लिए क्वेश्चन भी किया, वो भी कैंसिल हुआ, आप लोग जानते हो। मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ क्योंकि जिस घर में गार्जियन नहीं है उस घर में तो इतना दिन नहीं आप लोग देखा है कि, और मैं बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं, सब लोग जानते हैं। जिस ডিমান্ড को लेके आप लोग आए এনসি বাবু তো রয়েছে, এখন আপনি একটু আগে বললেন যে আপনারা কোঅর্ডিনেট অবস্থা এভাবে রয়েছে, এনসি বাবু তো রয়েছে, ওনার কোনো কি আশা আছে আজ পর্যন্ত? আপনারা জানেন আমাদের এনসি দেববর্মা আমি শ্রদ্ধা করি, সিনিয়র লোক, সেই ওখানে অসুস্থ, যদি একজন ফাউন্ডার অফ আইপিএফটি এবং যে গার্জেন তাই যদি অসুস্থ, তো ওই গার্জেন ওই ভোট কীভাবে করবে? বুঝছেন? धनंजय, जिस डिमांड को लेके आईपीएफटी पॉपुलर हुआ था त्रिपुरा लैंड का, उसको आप लोग फुलफिल क्यों नहीं कर पाए 4.5 साल? और अब एक बार भी आप लोगों ने असेंबली में उठाया नहीं, एक एमएलए के सिवा आपने भी उठाते हुए नहीं। ना, मैंने बोला था, मैंने क्वेश्चन भी किया था, मेरा क्वेश्चन कैंसिल भी हुआ, मैं उसका प्रूफ भी है मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन किया है। तो हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया है, ये नहीं कि एमएलए लोग जो जिस डिमांड को लेके हम लोग जिस मुद्दा को लेके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उस मुद्दा को हम लोग कभी रेस्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत बार कोशिश किया असेंबली में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी ने क्लियर बोला है कि वी डोंट सपोर्ट त्रिपुरा लैंड डिमांड, बट ट्राइबल लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उन्होंने इवन निर्मला सीतारमन ने एक पैकेज डिक्लेयर किया है 1300 करोड़ का, अलग पैकेज वो लोग बोल रहे हैं। आप लोग कितने इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम ये पैकेज वाला ये नाम बोलने से अच्छा है। पैकेज लेके हम लोग त्रिपुरा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हम लोग मुक्ति चाहिए तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए मेन मुद्दा महाराजा जितना भी हम लोग के लिए जो काम कर रहे हैं हम लोग को, इसलिए हम अभी त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, अभी महाराजा है गार्जियन हमारा, जिस गार्जियन को आप विश्वास करके हम लोग ने फाइट किया है, उस घर में अभी कमजोर हुआ, उस घर अभी विदाउट गार्जियन अभी घर हुआ। तो एक घर पार्टी का अलग बात हुआ, गार्जियन लेस, पर फाइनेंशियल बेनिफिट के सिवा कैसे डेवलप? आप देखें 4 साल में जो त्रिपुरा में कितना डेवलप हुआ, ये तो मैं अलग से बोलने का जरूरत नहीं, स्पेशली एडीसी एरिया में। आप क्यों अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होता है, तो एडीसी में क्यों नहीं? एडीसी में कुमिल्लू में करो स्मार्ट सिटी, व्हाई नॉट? Dhananjay, do you feel that development has not happened in the tribal areas under BJP party, IPP partner? तो भाजपा आईपीपी सरकार में ट्राइबल के डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? एक दूसरा सवाल सर, कि जब आपने बोला कि विदाउट गार्डियन है कि, तो हाल ही में एक मसला सामने आया था कि आपके पास पूरी पार्टी के एक लीडर प्रेसिडेंट चुने गए थे, उसके बाद आपके फाउंडर लीडर केम बैक एंड सेड आई एम द वैलिड प्रेसिडेंट, उसमें काफी चर्चा भी हुआ था। तो क्या आपको लगता है ये जो इंटरनल टेक ओवर ऑफ लीडरशिप था आईपीएफटी में, क्या ये कहीं पे रिस्पॉन्सिबल रहा होगा कि आपका आईपीएफटी गार्डियन लिस्ट हो गया? आपको लग रहा है क्या उसमें कुछ वेरिफाई रहा होगा? फैक्शनल ग्रुप कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर? देखिए, आप लोग मीडिया वालों को, आप लोग के पास सब लोगों की खबर है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन सा लीडर क्या हुआ है, आप लोग के पास सब खबर है। मैं एक्स्ट्रा बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो अभी त्रिपुरा में जो पिछले सरकार के जो डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं, स्पेशल आप बोलो ना, एडीसी में क्यों 800 करोड़ भेजो? लास्ट बजट सीजन में 26,000 करोड़ बजट किया है, तो एडीसी में कितना करोड़ दिया? तो इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, यहाँ इक्वल होना चाहिए, राइट इक्वल है, सबको इक्वल के देखो, डेमोक्रेसी सबके समान है, सबके राइट है। आप अगर तुम्हें 1,000 करोड़ आप बजट कर सकते हैं, एडीसी कुमिल्लू में करो,
आप अगरतला में स्मार्ट सिटी आप कर सकते हैं, उम्मीद में करो। एक डेमोक्रेसी कंट्री में सबके समान होना चाहिए, डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए। तो डेवलपमेंट से नहीं होगा। हम लोग त्रिपुरा सर का जो आइडेंटिटी का वो उसको उसके बारे में गवर्नमेंट भी सोचना चाहिए। गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट द आइडेंटिटी। और कोई सवाल होगा? इसका क्वेश्चन का सवाल मैं जब कोई त्रिपुरा सा मौका में ज्वाइन करता है तो कंडीशन की अगर कोई टिकट के लिए आ रहा है तो वो पहले से यहाँ में हमारे फॉर्मर लीडर ऑफिसर मोहम्मद कुमार सुनता है जी ज्वाइन। इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे टिकट तो तभी मैं टिकट मांगूंगा। धनंजय आया है, ही नॉट सेड मुझे टिकट तो मैं टिकट मांगूंगा। जब ऋषि केतु आज से 2 साल पहले आया, उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं रखा। ये नॉन अनकंडीशनल है। पब्लिक भी जानती है कि कौन टिकट के लिए आता है और कौन वफादार से काम करने के लिए। तो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन, आई एम द चेयरमैन, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। नीदर धनंजय, नो हमसे, नो ऋषि केतु ने कभी भी अपना टिकट के लिए निगोशिएट करके दूसरा मौका नहीं दिया। बिकॉज ये मोटिव तोहफा और वरना इलेक्शन के 3 महीने बाद, इलेक्शन के 1 महीने पहले वो करा चुनाव तो लड़ना ही है, तो एलिजिबल कैंडिडेट किसको आपकी गतिविधि अगर आप काम करेंगे आपको ये इलेक्शन कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है। ये 5, 20, 25 कैंडिडेट का लिए इलेक्शन नहीं होगा। ये इलेक्शन होगा 13 लाख 15 का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की। अगर आपको कैंडिडेट रखना है, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, ये कैंडिडेट का फाइट नहीं है, ये फाइट है फॉर सेफगार्डिंग आवर सर्वाइवल एंड लिविंग। तो ये बात क्लियर है। आप अगर इसको सिर्फ ये 2018, 2013, 2008 जैसा इलेक्शन नहीं है, ये एक अलग इलेक्शन है। इसमें हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। त्रिपुरा सा उसी को वोट, त्रिपुरा मोथा को क्यों वोट करेगा कि त्रिपुरा मोथा पार्टी से पहले कम्युनिटी का वेलफेयर को आगे रख रहा है। अगर हम लीडर को सामने रखेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जो आज त्रिपुरा मोथा में नहीं है लेकिन अपने एरिया में 0 है, क्योंकि पब्लिक को कुछ चाहिए, पब्लिक डिमांड समथिंग। त्रिपुरा सा पीपल का कोई डिमांड है, उसी को आगे रख रहे हैं हम लोग। और उसके बाद जो कैंडिडेट का बात है वो लास्ट में डिसाइड किया जाएगा। हम लोग इंटरनली प्रेसिडेंट एंड देयर हम लोग का एक सिस्टम है, हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। अभी हमको अपना एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करना है और ग्रेटर। अच्छा एमएलए बाबू खाये सानो तेगो एमएलए रो खाये को काम को तुम्हारा तो अब जरा पाइकेनो নাই যোগাযোগ পাইতো বিভিন্ন দলের পাই নাই জনগণের পাইতো যদি মহারাজা যেহেতু তিনি গার্জেন যতন হইতো ও জরাगा जों एज ए त्रिपुरासा हिसाबै जों ताम साबो ताम थायाबो नायाबो उष्ण तरजायबो ताबो जराबो महाराजनो महाराजन जे ग्रेटर त्रिपुरानि जे যতন হইबो जों फाइनाल এবং ফাইনাল আগামী দিনে আবার এবং বিভিন্ন নেতারা যোগাযোগ পাইছে। I think our president would like to say something. नया থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে আমাদের গৌরবের দিন। মাননীয় ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সিটি এমএলএ সব কিছু ত্যাগ করেন এবং ত্রিপুরা চেয়ারম্যান মহারাজ দিয়ে আপনাদের পরে উনি আসতেন প্রেসিডেন্ট হিসাবে ধন্যবাদ এবং ওয়েলকাম করি। ওনাদের বাবু আছেন, ওনাদের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি अधिकांश एमएलए তারা ফ্রাস্ট্রেটেড। এটলেস ট্রেন, ইঞ্জিনবিহীন ট্রেন চলতেছে এরকম একটা শুনতেছি।
মানে গার্জেন নাই ওনাদের বক্তব্য তাতে আমরা মনে করতেছি যে বিপ্লবতা একটা সংস্থা যেটা আমাদের পুরা ত্রিপুরার জনসাধারণের শিডিউল ট্রাইব হোক নন শিডিউল ট্রাইব হোক যে কোনো কমিউনিটির পক্ষে আমরা বক্তব্য রাখি এবং ত্রিপুরার গ্রেটার ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরার মধ্যে উইদিন স্টেট এটার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন জনসাধারণের যে প্রয়োজন এগুলি আমরা অ্যাড্রেস করার আমাদের ভিশন আছে যে যতদূর সরকার বর্তমান যে সরকার আছে বিজেপি এবং আইপিএফটি তাদের যে বক্তব্য তারা কতদূর এগুলি করতেছে আপনারা জানেন আমি আমার নজর নাই কিন্তু সবারই পক্ষে যে বক্তব্য যে তারা কিছুই করার তারা আর সময় নাই এখন তারা বলবে আমরা আর 5 বছর সুযোগ দেও আমরা করবো বিগত 5 বছর কিছু করেন না এটা আমি বলতেছি এরকম নয় কিন্তু যারা এমএলএ আছেন যারা মন্ত্রী আছেন তাদের নিজস্ব বক্তব্য আমরা বুঝতে পারি যে তাদের গভর্নমেন্টের ইঞ্জিনলেস ট্রেন মানে ইঞ্জিন নাই একটা ট্রেন চলতেছে ওনারা প্রশ্ন আসছে বিধানসভায় on the floor of the house but their questions have been rejected. They are unable to bring their questions on the floor of the house for the interest of the people. And we also have been in the assembly and we tried our best to bring the issue of the public. So today also, as our chairman has already said, we are very much united in the organization so that we can achieve something for the people through our better people than demand. So therefore today we are grateful, we are happy, we welcome our honorable members, those who come from the assembly and from the public position also. And we believe, according to them, and we shall be able to manage the greater people in the state, in the field of peace and tranquility also. The people may feel everybody is my brother, everybody is my sister. We won't like it. We go everywhere, accepting some politician trying to moralize and give us some wrong color of communion. But we are never communion. It is the propaganda of the communist people also. So we are never communion. So today you have seen in Surma, not only in Surma, in different places, you can have a look and talk to the public. They will witness it, saying that no Tripura has never communion. It is for everyone. We want to work with everybody, and we have to see that our deprived population, there are different minority group in the state also. We should plead for them. Therefore, one of our honorable MLA, he resigned today after he has been influenced by our chairman, Honorable Brother Kishore Maliko, and after he made an appeal, it has reached to his heart also. It will be reaching to different hearts of the people. And we believe in days to come, we will be able to stand on our own foot with your cooperation. And you will be publicizing our approach, our mindset with the state. Thank you. I just want to say one thing. एक बात before. Thank you, friends. आपने इतना समय लिया है. I know you will also have other press conferences to attend. ये एक प्रोपेगेंडा है, एक बहुत malicious प्रोपेगेंडा है कि हम लोग कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ हैं. सबसे पहले let me assure and tell everyone, we want the development of all communities in Tripura. अगर ADC में डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो सच्चाई है, लेकिन ये और एक सच्चाई है कि ADC के बाहर भी बहुत लोगों को डेवलपमेंट नहीं मिला है.
आज आप 10,323 टीचर्स के बारे में जो हम लोग फाइट करते हैं, तो वो सिर्फ तिपरासा नहीं, उसमें मणिपुरीज हैं, बंगालीज हैं, मुस्लिम्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं। जब हम लोग सूरमा से फाइट करते हैं तो एक हिंदुस्तानी चा बागान वर्कर को हमने जब सीट दिया, वो तिपरासा नहीं है। हम मणिपुरी, विष्णुप्रिया से बात कर रहे हैं, मैते से बात कर रहे हैं। एससी कम्युनिटीज़ में बहुत बंगाली लीडर्स हैं जिनको डिनाई किया गया है, बहुत फेक एससी सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हाँ, एक बात है कि मैं आपको डिनाई नहीं करूँगा कि इससे पहले रीजनल पार्टीज थे जिन्होंने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच दिया था, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। I am from a family which has given patronage to the great Nobel laureate Rabindranath Tagore, Jagdish Chandra Bose. हमने कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थियों को हेल्प किया, मेरे फादर ने हेल्प किया 71 यूथ में, यहाँ में पैलेस के सामने हमने हेल्प किया। तो हम लोगों का फैमिली हमने कभी भी कम्युनल आउटलुक नहीं दिया, लेकिन आज दरकार है कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार अपने तिपरासा के बारे में बात करें। लेकिन मैं इसका भी आई एम ऑल्सो अवेयर दैट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आउटसाइड एडीसी एरियाज। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम। जब बिजली नहीं आता है तो सबको अफेक्ट करता है। रोड अगर हमारे वहाँ में नहीं है तो अगरतला के बाहर भी कोई खास अच्छा रोड नहीं। स्कूल एजुकेशन सिस्टम, अगर हमने कहा है कि कॉकबोरोक शुड बी स्पोकन इन रोमन स्क्रिप्ट, क्योंकि हम चाहते हैं इट इज नॉट फॉर रिलीजियस पर्पस, इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आज हमारा बच्चा इंग्लिश और हिंदी सीखेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में अच्छा मिलेगा। तो इसी के लिए हमने ये डिमांड्स उठाया है। हमेशा हमारा डिमांड को एक कम्युनल कलर दिया जाता है। मीडिया, यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मीडिया हैज सफर्ड ऑल्सो, मीडिया हैज नॉट सफर्ड एनी लेस। मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स बदल चुका है त्रिपुरा में, एटलीस्ट रीजनल पॉलिटिक्स बदल चुका है। हम सिस्टम को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। आई हैव गॉट फ्रेंड्स जो तापस दे, मैं बचपन से जानता हूँ। हमारे इतने अच्छे बंगाली फ्रेंड्स, बंगाली वेल विशर्स है, लक्की नाथ, मैं खुद कांग्रेस में प्रेसिडेंट था, हमने सबके साथ काम किया। तो ये लाइन की तिपरासा जब अपना अधिकार मांगता है तो वो किसी का अधिकार छीनने के बारे में बात कर रहा है, ये बात नहीं। मैंने दूसरा बात आई वांटेड टू पुट हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। ये आज मुस्लिम को टारगेट करके हिंदू का पेट नहीं भर रहा है, आज क्रिश्चियन को टारगेट करके बुद्धिस्ट का पेट नहीं भर रहा है। तो आने वाले दिन में क्या हम त्रिपुरा को क्या देखना चाहते हैं? वी वांट डेवलपमेंट फॉर ऑल। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए, अगर रास्ता अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए। हेल्थ केयर में इतने लोग, आज से 2 दिन पहले हमारे चिन्मय थोलोय अम्बासा के ब्लॉक प्रेसिडेंट का डेथ हुआ, जॉन्डिस, मलेरिया, उसके बाद हेपेटाइटिस। ठीक जब तक जीबी हॉस्पिटल तक वो पहुंचा 4-5 घंटे में उनका देहांत हो गया। जब इतने अगर नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? बाहर से लोग आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरी रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये सब इश्यूज है, इसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक अकॉर्डिंग टू। हाँ, बाइबल है, उपनिषद है, वेदास है, कुरान है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ लिखा है कि हमारा डिमांड इलीगल है या देश के खिलाफ है? हम अपना डिमांड रख रहे हैं पीसफुली, हमने बंदूक नहीं उठाया। आप देखिए ईटीसी में कुछ फाइट्स भी नहीं हुआ है बिटवीन तिपरासास एंड नॉन तिपरासास, बंगालीज एंड तिपरासास। 18 महीना हो गया है, एक फाइट नहीं हुआ। इससे पहले छोटे छोटे जब आईपीएसटी ही था जिसके साथ आपने गवर्नमेंट बनाया, अगरतला में कितना वायलेंस होता, एडीसी में रोड ब्लॉकेट्स होता, हमने तो नहीं कराया। और हमारा फैमिली का एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए। वी आर नॉट लाइक दैट। we are people who understand. We understand the pain of the Hindu Bengalis in East Pakistan, and we feel that justice should be given to them, and we want justice to be given. But
we also deserve some justice, we also deserve some right. एंड मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, इसके लिए मैंने कहा कि नेगोशिएशन या बात हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ बोलेंगे कि ये लोकल प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करो, ये कभी सॉल्व नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी बनता है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन अपने बलबूते में फाइट करेंगे। धनंजय हैज जॉइंड आवर पार्टी, भी वेलकम है। दूसरे पार्टी से भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बात क्लियर होना चाहिए, आप टिकट के लिए आएंगे तो ये नेगोशिएशन नहीं होगा। अगर आप दफा के लिए आएंगे तो हाँ, हम बात करके बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। एंड आई अपील टू द मीडिया वंस अगेन, प्लीज, ये पूजा भी खत्म हुआ है, आने वाले दिन में आज कल तक मालूम होगा कि विलेज काउंसिल इलेक्शन का डेट क्या है। प्लीज आई अपील कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए शांति से बैठ के होना चाहिए। त्रिपुरा में अगर वायलेंस हुआ तो रियल इशू पर कोई बात नहीं करेगा। डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा होना चाहिए। तो मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि प्लीज इसको भी आप सामने रखिए। एंड जो 5-10 लोगों का एक पूरा षड्यंत्र है कि इसको त्रिपुरा साहब बंगाली बनाए, ये घिसा पिटा हुआ पॉलिटिक्स ने त्रिपुरा को बर्बाद किया है। आज त्रिपुरा साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए और बंगाली को भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए। मुझे लगता है दोनों को ये मिल सकता है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये मिल सकता है। बस बेलाई नहाम भाई, धन्यवाद, थैंक यू। एनी क्वेश्चन, अगर किसी को एक कोई क्वेश्चन है तो मैं पूछूं। महाराज, आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दे हैव टू प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, इज देयर ड्यूटी, or else we shall fight the elections on our own might. If there is a solution given to the government of India, it has to be in writing. This is Dhananjay said. Yeah. High powered committee बना था 2018 में। आज फिर से अगर I end up going to Delhi doing this और कोई हाई पावर्ड कमेटी बन जाता है और उसमें कुछ लिखा नहीं गया है तो फिर से धोखा होगा। हमें जो भी चाहिए राइटिंग में चाहिए, एक क्लियर, देखिए ये 2023 में हम रिपीट नहीं करेंगे। एक हाई पावर कमेटी ऑलरेडी बना था, कमेटी से नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री इज द ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी to invite and discuss about our demand in writing for Greater Tripura land. Government of India, let Government of India invite us. Let's talk as respectable people. We are not underground group. We are not ISI backed Pakistan, Hizbul Mujahideen. Hizbul Mujahideen से भी Government of India ने बात किया है, हम तो Hizbul Mujahideen नहीं हैं। We are democratically elected. I have also said that सिर्फ मुझसे बात करने से नहीं होगा। यहाँ में काउंसिल ऑफ त्रिपुरा हौदास है, समाजपति हैं, हौदा जमातिया है, क्षत्रिय समाज है, चुबलाई बुथू है, कास्काव है, हमारा कोलॉय समाज है, उनको भी आप बुलाइए, उनको भी स्टेक होल्डर्स बनाइए, सिविल सोसाइटी को भी स्टेक होल्डर्स बनाइए। और आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात मत कीजिए, पूरा समाज से बात कीजिए, जिससे नागालैंड में नागा हो बात हो रहा है। ये सॉरी, ये बात मैंने मेंशन नहीं किया था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सबको इनवाइट कीजिए एक डायलॉग के लिए, और ये डायलॉग को सिर्फ इलेक्शन और सोल्यूशन कभी नहीं होगा अगर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात करें। कम्युनिटीज आप इन्वॉल्व कीजिए, हमारे रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए, हमारे अदास को ऑपरास को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए, और हम लोग सब बैठकर बात करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अगर ये नहीं होगा, अगर आप डिवाइड एंड रूल करेंगे, तो आई एम सॉरी, आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई रिस्पेक्ट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग एंड नॉट अशरिंग देम फॉर व्हाट वी स्टार्टेड। आई थिंक इट विल द टाइम I want the Tripura people, the Bengali people, Hindus, the Muslims, the Buddhists, the Christians, dignified.
and with the right. That's it. Thank you. सेंटर ने नहीं किया तो क्या करें? नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नागरिक को झूठ बोलेगी राइटिंग के